Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast series of Digital Pakistan by Dr. Imran Batada. In this podcast series, I'll be your host, Ikra Asif. And in this podcast series, we're going to discuss the opportunities of Digital Pakistan under the supervision and the vision Dr. Imran Batada has for the entire nation. I have, just to give a quick intro, so I've been a part of IBA in the batch of 2019, and I was also fortunate enough to be part of 2023's diploma programs batch of IOBM as well, under Dr. Imran Batada's supervision, where I was the first position holder. I have been working in numerous industries in the domain of digital marketing, per se. North American, Canadian, Australian, and right here in Pakistani markets as well. So welcome to the show, Dr. Batada. I'm really happy and glad to have you on board. I still remember हम लोगों ने जो 2023 में book launch किया था Digital Pakistan का, that was a huge immense hit as well, and I am so fortunate enough कि हम लोगों ने at least 2025 में अब finally हम लोगों ने podcast series start कर लिया है. So I'm it's my pleasure to work with you in this series, and just to applaud you. You've been in this industry for 24 years in the academia, in this industry, and I have served numerous accolades as well. So welcome to the show, and also I would like to I'm really inspired by your personal vision that आपने under more than 10,000 plus students को youth empowerment and different digital marketing के programs में आपने introduce करवाया है and everything, and you have surpassed their entire vision. So would you like to share something about Digital Pakistan, and I would be immensely grateful that आप हमारी audience को बताएं कि Digital Pakistan, what is for you and what was the motive behind everything? Assalamualaikum everyone. Thank you very much Ikra for the generous introduction. Well, अगर आप डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं इसको डिजिटल पाकिस्तान नहीं, मैं इसको कहता हूँ डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़. एंड एज़ यू नो दैट कि हम वो कंट्री हैं जहाँ पे ओवर 65% हमारा यूथ है. इसका मतलब ये है कि अराउंड 18 to 35 जो एज ब्रैकेट है उसमें हमारे पास 65% जो है वो यूथ है. सो वो यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करने के लिए दे रियली वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल पाकिस्तान एज वेल. सो आई यूज्ड टू से दैट कि डिजिटल पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट, it's going to be basically change the life of the individuals as well. That's awesome actually. Right. So I would also like to ask you that how would you understand Digital Pakistan, who are the major stakeholders for this entire vision that you have, and what do you think are like the top 5 things that you would say कि हमारी audience and हमारे जो major youth that you've mentioned, so what are the top key 5 themes of your vision, I would say? Well, before going for the 5 themes, मैं एक बात कहता हूँ, and that's very much important to say now, कि हम हमेशा से सुनते आए हैं रोटी कपड़ा और मकान. तो अब मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ आप इंटरनेट भी डाल दें. So that's basically very much important in case we are talking about the digital Pakistan and we really would like to achieve something as a nation. तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा. तो जो 4-5 जो मैंने की एरियाज़ हैं जो मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किए हैं, उसमें सबसे मेजर की एरिया है दैट्स बेसिकली कॉल्ड द ई गवर्नेंस. और ई गवर्नेंस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल किस तरीके से सरकार ऐसा काम करेगी कि वो कॉमन सिटीजन्स को इसका बेनिफिट होगा. रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट के अंदर एफबीआर के लिए एक बहुत बड़ी जो है अमाउंट है वो रखी गई है, स्पेसिफिकली टारगेटेड टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल. सो इन वन वे आई एम वेरी ग्लैड दैट हमारी हुकूमत जो है, हमारी नेशन जो है, हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं, they all are understanding the concept of the digital Pakistan as well, and they all are working for the common goal too. So एक तो हमें स्ट्रेट अवे नज़र आता है जिसमें ई गवर्नेंस आ गया. साथ साथ अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स बेसिकली द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट टू. अभी मैंने जैसे अभी अपनी डिस्कशन में कहा कि 18 to 35 ईयर्स के जो बच्चे हैं हमारे पास यूथ हैं, वो हमारा 65% है. तो सामने से क्वेश्चन आएगा क्या हम उनको बेसिक चीज़ दे रहे हैं, और बेसिक चीज़ इसके लिए क्या है. इसके बेसिक चीज़ है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है या नहीं दिया है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज वी आर लिविंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वहाँ तो आपको इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बेहतर नज़र आती है. व्हाट अबाउट दी रिमोट एरियाज़? सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एज वेल. The other aspect that I have mentioned also, that's the startup and the ecosystem.
सो कभी मेरे ख्याल में किसी हम सेपरेट एपिसोड में स्टार्टअप के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि किस तरीके से यूथ के पास आज के दिन में स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. सो दैट्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आई यूज्ड टू से दैट कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, स्पेसिफिकली इन द डिजिटल साइड एज वेल. एंड फाइनली आई एम गोना से दैट कि डिजिटल एजुकेशन, लर्निंग, ये सारे एस्पेक्ट्स ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि जिसको हमें कंबाइनली जॉइंटली वर्क करना है अलॉन्ग विद द डिजिटल सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी. ये वो एरियाज़ है जिसमें हमें साथ वर्क करना है इन ऑर्डर टू अचीव द विजन ऑफ द डिजिटल पाकिस्तान. सो आपने बात की है कि कि फॉर आवर यूथ, राइट, कि उनके हमारे पास इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ है. यूथ हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज वेल, बट ऑल द लैक इज़ द स्ट्रक्चर. सो हाउ वुड यू से दैट यूथ को किस तरीके से एज अ स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन के सेक्शन में व्हाट इज़ द विजन दैट यू हैव लाइक फॉर अ नॉर्मल यूथ पर्सन हु इज़ वांटिंग टू स्टार्ट अ स्टार्टअप लाइक अ बेसिक. आई एम श्योर वील बी डूइंग अ डिफरेंट एपिसोड ऑन दिस, बट जस्ट to clarify to our major audience as well for that. So आपका क्या इसमें राय है? एक होता है कि सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और मैं अक्सर कह रहा हूँ कि अभी राइट नाउ जो है स्टार्टअप के लिए पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है. अब आपका क्वेश्चन होगा इसका क्या मतलब है, सपोर्ट सिस्टम कहाँ से अवेलेबल है? अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द कंप्लीट सपोर्ट फॉर द स्टार्टअप एज वेल. ठीक है, रिसेंटली हमने पाकिस्तान में शार्क टैंक पाकिस्तान को देखा, तो अगर आप देखें कि किस तरीके से एक छोटे छोटे स्टार्टअप जो हैं वो 2 कमरों से कितने मेजर स्टार्टअप या मेजर कंपनीज़ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. सो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे काफ़ी इस डिजिटल स्पेस के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्ट कर रहा है. साथ साथ गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी हैं जो इस स्टार्टअप एरिना पे हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. Right. And what about the digital education, I would say, because definitely skills भी हैं, different different certifications, different courses हैं जो हमारे youth को हम लोग many people are actually wanting to know कि या कोई certifications, कुछ courses हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कौन से top skills हैं that are going to be like the leading ones in 2025 and so on further. So what would you say कि if any youth would want to like enlist like top 5 skill sets that they should be working on, so what would that be? देखें क्या है कि अभी 2025 में आई यूज्ड टू से टू द अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एज वेल कि अगर आप सिर्फ डिग्री प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं सो दैट्स नॉट गोना बी इनफ. व्हाट डज दैट मीन? तो अलॉन्ग विद दैट यू मस्ट हैव द स्किल सेट्स एज वेल. सो अगर आप देखें तो वो स्किल सेट जो है वो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रो करवा देगा. और जैसे मैंने कहा कि डिजिटल के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. तो आजकल के तो टाइम में एवरीबडी वांटेड टू हैव द रिमोट जॉब्स, एवरीबडी वांटेड टू हैव द पैसिव इनकम. तो वो पैसिव इनकम के लिए या रिमोट जॉब्स के लिए या आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल नोमैड्स के लिए, तो वो स्किल सेट्स का होना बड़ा मैंडेटरी है. तो वो स्किल सेट्स आपके पास अगर होगा और राइट डायरेक्शन पे अगर आप उसके साथ काम करते हैं तो सर्टेनली इट्स गोना चेंज द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स एज वेल. Absolutely. I would like highly recommend that. However, I would also like to ask you that like the this Digital Pakistan podcast series is like a numerous chunk of learning and opportunities जो कि हमारे stakeholders जो हैं उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. But what would you say, like who is this podcast for? Who can relate to this podcast? Who for whom it will be like more useful to? So I think that is really important because जाहिर सी बात है कि हमारा सारा हर चीज़ उन्हीं के बेसिस पे है. सो what are the top like 4 stakeholders that in the audience we are targeting, और ये हमारा जो आपकी जो विजन है और जो आप बताएंगे वो किसके लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए जो मेजर हमारा एरिया है एज आई सेड दैट कि इस डिजिटल पाकिस्तान के अंदर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो अपॉर्चुनिटीज़ को नॉर्मली जो टारगेट करना चाहेगा वो यूथ चाहेगा. और अगर आप कहें कि वो मैं क्या उन 65% की बात कर रहा हूँ तो सर्टेनली मैं उन्हीं 65% की बात कर रहा हूँ. मैं इसमें से ये नहीं कह रहा कि उसने ओ लेवल्स किया है या ए लेवल्स किया है, वो अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, ठीक है, बिकॉज कि जब आप स्किल सेट्स की तरफ आते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता. एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर गुड इन पर्टिकुलर स्किल सेट तो सर्टेनली आपके लिए एक नया ही ओशन ओपन हो जाता है एंड वेर यू कैन बेसिकली गो एंड एक्सपोनेंशियल आप पे ग्रो भी कर सकते हैं. So जैसे कि I'm sure जब what you've also mentioned youth, so is it also for like the
the dropouts as well, like a college dropout, or maybe freelancers, maybe there is an age bracket or any of that. So like, what is it? नहीं देखें कि मैं आपको बताऊं, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो एवरीबडी वांटेड टू हैव द एक्स्ट्रा कैश, ठीक है। ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जिसको एक्स्ट्रा कैश नहीं चाहिए, ठीक है। ये अक्सर पाकिस्तान की नहीं बात करता मैं, तो इसको ग्लोबली भी बात करता है। एवरीबडी वांटेड टू हैव दैट। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं और अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट्स हैं तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं अक्सर कहता हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि इसके लिए आपको सालों का इंतज़ार भी नहीं करना। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप इसको एफर्ट्स लगाते हैं 3 to 4 मंथ्स में एक पर्टिकुलर स्किल सेट्स के ऊपर अगर आप अच्छे हो जाते हैं तो सर्टेनली वो स्किल सेट्स आपको अच्छा कमा कर दे देगा। राइट। एंड मुझे लगता है कि ये जो आपका विजन है और इस तरीके से जिस तरीके से डिफरेंट स्किल सेट्स पे यूथ काम करे, तो ऑफ कोर्स आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज ऑफ कोर्स who else doesn't want कि वो USDs में कमाए और कहते हैं PKR में करे, करेंसी कंसिडरिंग किस तरीके से हमारी अभी करेंसी भी डीवैल्यू हो गई है। सो व्हाट वुड यू से, लाइक which is one of the country that our like youth should be targeting in terms of getting opportunities worldwide? वेल देखें, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो हमारे पास पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं वो टॉप 3 इन द वर्ल्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा यूथ जो है वो ऑलरेडी इस तरफ मौजूद है, हमारा यूथ जो है वो ऑलरेडी इस के ऊपर वर्क कर रहा है और वो फॉरेन करेंसी में कमा रहा है, ठीक है। सो दैट्स अ गुड पार्ट एज़ वेल। तो हमारा GDP का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ से आ रहा है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। बट क्या ये नंबर बढ़ सकता है? तो मेरा ये कहना है कि ये एक्सपोनेंशियल ये नंबर बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप कहें कि इस पॉडकास्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इस पॉडकास्ट का भी इम्पैक्ट यही था कि एट द एंड ऑफ द डे वी गोना शोकेस कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एंड दैट्स गोना बी डायरेक्टली टाइड अप विद द GDP ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल, कि किस तरीके से हम अपने यूथ को ऐसा कुछ बताएं, ऐसी कोई गाइडलाइंस दें, ऐसी मेंटोरशिप प्रोवाइड करें सो दैट दे कैन बेसिकली गो इन द राइट डायरेक्शन एज़ वेल। Right. And like I think you're absolutely right. However, I would also like like to introduce जो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है, that is digital nomads. So of course digital पाकिस्तान में की different opportunities हैं जिसमें हम लोगों को बहुत सारे topics को tap up करना है. However, being part of numerous groups, हम 84% of people opted for कि हम अपना first episode जो है digital nomads पे करें. So digital nomads एक conceptual term में क्या है, अगर आप एक आम आदमी को समझाना चाहें, एक बंदे को जो जिसके पास skill set है, क्या वो डिजिटल नोमैड बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या चीज़ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन एवरीथिंग। सो इफ़ यू कुड लाइक ब्रीफ इट अप फॉर ऑडियंस, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। नहीं इकरा, दैट्स द फंटास्टिक टॉपिक। एंड आप बिलीव करें, जब आप सर्वे कंडक्ट कर रही थी तो मुझे यही था कि डिजिटल नोमैड जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज कि देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दूं तो जो ये हमारा यूथ है, और आई यूज़ टू बेसिकली कंडक्ट क्लासेस फॉर द अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज वेल। तो मैं एक क्वेश्चन ज़रूर अपनी क्लास में पूछता हूँ और वो ये होता है कि हाउ मेनी यू वांटेड टू बेसिकली गो अब्रॉड। तो आप बिलीव करें 80-90%, समटाइम्स 100% स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर जाने की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बाहर जाने में क्या होता है, बाहर जाने में यही होता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस थे। आज से 5-10 साल पहले मैं कहूं तो कुछ ऑप्शंस थे। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि सर मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकती हूं, येस सर्टेनली दैट्स वन ऑफ द ऑप्शन। आप कहते हैं आई डू हैव द स्पाउस वीज़ा, सर्टेनली यू कैन बेसिकली ऑप्ट दैट, फैमिली वीज़ा, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अगर जिनके बच्चे भी हों, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। सो अब ये डिजिटल नोमैड ये ऐसी चीज़ आ गया है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी फॉरेन करेंसी में कमा रहे हैं, ठीक है, या आपके पास स्टेबल इनकम मौजूद है, तो बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि फ़ॉरेन करेंसी में ही हो, वो स्टेबल इनकम अगर आपके पास आ रही है तो उस स्टेबल इनकम के बेस्ड के ऊपर आप डिजिटल नोमैड वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ ये वीज़ाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पूरा यूरोप आपको प्रोवाइड करते हुए नज़र आएगा, आपको मलेशिया, मिडल ईस्ट में लोग कंट्रीज़ प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। सो दैट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ एज़ वेल, बिकॉज अभी मैंने कोट किया कि 65% जो है हमारा यूथ है, उसमें से टॉप 3 फ्रीलांसिंग हम एज ए नेशन है। दैट्स अ वेरी प्राउड नंबर फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट दे कैन डू, दे कैन बेसिकली गो अहेड एंड ऑप्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन टू। सो सर्टेनली इसका बेनिफिट उनको ये होगा कि वो स्ट्रेट अवे विद दैट पर्टिकुलर इनकम दे कैन अप्लाई फॉर दैट वीज़ा एज वेल।
और वहाँ पे वो सेटल डाउन हो सकते हैं. एंड द गुड पार्ट इज़ कि इवेंचुअली this visa gonna be converted into the permanent residency and citizenship also. So that's also the fantastic जो कहते हैं ना कि हमें मूव होना है या हमें बाहर जाना है, बिकॉज कि बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है. इसकी वजह अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानियों का लास्ट मार्च का अगर मैं आपको स्टैट शेयर करूं तो $4.1 बिलियन का रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आया है. तो ये वही लोग हैं जो बाद में हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं और जिसको हमें एज ए नेशन हमें इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है. तो डिजिटल नोमैड ये वो एरिया है जो अगर कोई फ्रीलांसर ऑलरेडी है और अगर वो अच्छे पैसे कमा रहा है, क्योंकि ये वेरी करता है हर कंट्री के नंबर्स थोड़े से वेरी करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का होता है कि पर मंथ अगर आप $1,500 कमा रहे हैं, कहीं आ रहा है $2,000, कहीं $2,500 और यूरो है. तो इस तरह की अगर आपकी इनकम ऑलरेडी हो रही है तो यू आर स्ट्रेट अवे एलिजिबल. बट सब्जेक्ट टू कि जो भी आपकी इनकम हो रही हो वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए. अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर इसने पैसे दे दिए उसने पैसे दे दिए, नो, इट वोंट वर्क लाइक दिस. सो यू नीड टू शो द प्रॉपर मनी ट्रेल एज वेल. दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो आई थिंक ये ग्लोबल एक्सपोजर भी के लिए आई थिंक दैट्स अ न्यूमरस एंड a very very good opportunity because not everyone is like has financial capability के वो maybe master's program या maybe bachelor's program के लिए affordability कर सकें. I think digital nomad visa is a great opportunity कि आपके पास skill set है. आप you have the you can use digital nomad visa as a stepping stone for your further bright future as well. So इसके अंदर are there any any target audience that is not catered in this digital nomad visa? कोई ऐसे लोग हैं, कोई target audience है जो कि जिनके लिए digital nomad visa नहीं है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन इकरा. बट मैं इससे पहले एक और चीज़ बताना चलूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, इसमें ऐसा है कि लोग हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सर कैन आई गो विद माई स्पाउस, तो येस यू कैन गो विद योर स्पाउस एज वेल. और इफ़ यू हैव द किड्स सो यू कैन गो विद योर किड्स टू. एंड द गुड पार्ट इज़ कि आपके बच्चे जो हैं वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ गोना बी फ्री एंड यू कैन बेसिकली वर्क फॉर देयर एज वेल. एंड द गुड पार्ट इज़ यू डू नॉट नीड टू पे एनी टैक्सेस ऑल्सो अनटिल अनलेस आप उस कंट्री में कर रहे हैं तो उस कंट्री का आपको टैक्स ज़रूर देना होगा. बिजनेस कर रहे हैं तो वो टैक्स ज़रूर देना होगा. अदर दैन दैट ये टैक्स फ्री इनकम आपकी बन जाती है. सो दैट्स जैसे भी आपने कहा कि सर इसमें एक्सपोजर है, ऑफ कोर्स सर्टेनली जो एक्सपोजर आपको मिलता है. और डिजिटल नोमैड्स बेसिकली है ना वो फ्रीलांसर्स ही होते हैं. वो फ्रीलांसर से क्या मतलब है, वो गिग इकनॉमी का पार्ट होते हैं. वो कभी कोई प्रोजेक्ट कहाँ से ले लिया, कभी कोई प्रोजेक्ट कहाँ से ले लिया, ठीक है. तो हो सकता है वो कभी आपको एक कंट्री में नज़र आएंगे, कभी आपको दूसरे कंट्री में नज़र आएंगे, ठीक है. तो उनका लाइफस्टाइल जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट होता है. और अगर आप देखें तो वो रेगुलर स्ट्रीम जो रेगुलर 9 to 5 की जॉब्स वाले जो होते हैं उससे वो कहीं आगे निकल जाते हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर वो आगे निकल जाते हैं. तो अगर मैं एज यू सेड दैट इन द इंट्रोडक्शन कि आई एम इन द एकेडमिया सिंस 2 decades नाउ. तो अगर मैं आपको बताऊं कि पहले ये था कि एवरीबडी वांटेड टू जॉइन दी MNCs और कोई बैंक्स में जॉब मिल जाए. बट आज का ग्रेजुएट है वो कहता है कि नहीं सर मुझे जॉब नहीं चाहिए, आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग माय ओन. आई वांटेड टू बेसिकली बी पार्ट ऑफ द गिग इकनॉमी एज वेल. तो गिग इकनॉमी क्या है, वो यही है जो आपके लिए डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ ही लेकर आ रहे हैं. राइट. आई एम श्योर ये कहते हैं इंडियन जो हमारे इंडियन ऑडियंस है, ऑफ कोर्स दैट इज़ लाइक वो तो हमारे देर सरपासिंग और एक्सपेक्टेशंस. हाउएवर पाकिस्तानीज हैव लाइक अ ह्यूज पोटेंशियल एज वेल. बट डू यू थिंक दैट आर यूथ does has like a thing कि अभी उनको कुछ और सीखना है? Do they require any structure? Is there any road blocker for them? And how are you how will you be able to remove that road blocker for them? Because that is the key thing, because everyone wants to go abroad but no one knows how to. So आप अगर हमें कोई top 5 top 7 steps में कुछ इसका कोई तावीज़ बना के हमें बता दे तो I think that would be super great, because I think that is where everyone is like looking forward to. हाँ, नहीं मेरा ख्याल है कि मैं अब आपको एक तावीज़ दे देता हूँ for your audience as well. So that's gonna be easy. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, फॉर एग्जांपल हम 2 केसेस को डिस्कस कर लेते हैं. एक केस वो है जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, उसके बाद वो मोटिवेट हो गया, वो कहता है कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, एक शॉर्टकट है, सर्टेनली दैट्स दी शॉर्टकट और मुझे कुछ करना चाहिए. तो नंबर 1 उसको क्या करना चाहिए? नंबर 1 उसको स्किल सेट्स पे काम करने की ज़रूरत है. वो स्किल सेट्स कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं क्या सर वो लॉयर है, तो क्या वो लॉयर भी हो सकता है? सर्टेनली कोई लॉयर भी हो सकता है. तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल सेट सिर्फ और सिर्फ IT बेस्ड हो, ठीक है. वो स्किल सेट कुछ भी हो सकता है. तो वो स्किल सेट्स अगर आपके पास हैं, अगर आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं या आप कहते हैं नहीं सर आई एम वेरी गुड इन अकाउंटिंग, आई एम वेरी गुड इन SAP,
ठीक है, दैट्स वन ऑफ द टूल फॉर ERP सिस्टम। तो आप इसके अच्छे हैं। तो मैम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपका बहुत अच्छा स्किल सेट्स हैं, तो वो अगर नहीं है तो आपने उसको क्या करना है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स गोना बी द स्टेप नंबर 1। वंस डन, तो फिर अब आपको क्या करना है, यू नीड टू बेसिकली क्रिएट योर ओन ब्रांड ऑल्सो। ठीक है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम सब जो हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी MNCs में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, तो हम उसी बैंक को मार्केट कर रहे हैं या MNCs को मार्केट कर रहे हैं ऑल द टाइम विद आवर ओन प्रोफाइल एज वेल, विच इज़ फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट डू दिस, बट एटलीस्ट try to basically create your own brand as well. That's the most important part. Number 3 is once you have created your own brand, और उस ब्रांड के लिए आपको कौन सा चैनल यूज़ करने की ज़रूरत है, LinkedIn gonna be your channel, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत है सो दैट आप लोगों को पता चलेगा आप क्या हैं, बिकॉज कि दैट्स गोना बी हेल्पफुल टू गेट द जॉब्स, दैट्स गोना बी हेल्पफुल टू गेट द पैसिव इनकम। ठीक है, सो यू नीड टू क्रिएट योर ब्रांड फर्स्ट, यू नीड टू कम अप विद योर ओन पोर्टफोलियो, जो आपने काम किया है एट द एंड ऑफ द डे, जो आपको रिमोट जॉब दे रहा है या पैसिव इनकम के लिए आपको कुछ काम देना चाह रहा है गिग इकोनॉमी के अंदर, तो वो आपका वर्क देखना चाह रहा है। सो द स्टेप सेकंड और थर्ड यू कैन से दैट कि आपके पास वो पोर्टफोलियो शोकेसिंग होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये भी डेवलप्ड हो गया है और आप कहते हैं कि सर व्हाट्स गोना बी द फोर्थ स्टेप, फिर आपने क्या करना है कि इन मार्केट प्लेसेस जिसमें अपवर्क है, फाइवर है, उसमें आप जाके अपने अकाउंट्स बनाएं। ठीक है, दीज आर द गुड मार्केट प्लेसेस। आप वहाँ पे अपने जाके अकाउंट्स बनाएं और वहाँ जाके आप क्या करना है, आपने उस गिग इकोनॉमी का पार्ट बनना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं और आपके पास स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाती है, और वो स्टेबल इनकम को आप शोकेस भी कर सकते हैं इन द फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि सर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री भी आ गई है, तो अराउंड 6 मंथ्स की क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर आप कह सकते हैं कि सर एम आई एलिजिबल, तो आई एम गोना से या यू आर एलिजिबल नाउ। सो दीज आर द 3, 4, 5 स्टेप्स जो मेरा ख्याल है कि अगर आप फॉलो करते हैं तो सर्टेनली इसके 2-3 फ़ायदे आपको स्ट्रेट अवे हो जाएंगे। एक तो आप डिजिटल नोमैड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा कैश आना शुरू हो जाएगा, पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स फंटास्टिक मेरा ख्याल है कि बिकॉज के, और दैट्स गोना बी गुड फॉर ऑल एज ब्रैकेट्स। अगर आप कोई ओ लेवल्स में है, कोई ए लेवल में है, ठीक है, सो दे कैन ऑल्सो सर्टेनली टेक दैट इनिशिएटिव टू एंड दे कैन स्टार्ट दैट। आई नो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। सो द पॉइंट इज़ के एज सिर्फ आपके दिमाग का बैरियर हो सकता है, इस डिजिटल वर्ल्ड में कोई बैरियर नहीं है। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक आपने जो हमारी ऑडियंस को बताया, आई थिंक अगर कोई भी इस स्टेप्स को फॉलो करता है, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लैंड इन इमेंस अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट everyone should closely follow and pursue it as a career as well, definitely. And if you would like to, Dr. Barada, if you would also like to share any success story, आपने तो more than 10,000 students की life change की है, right? And there you have like your success stories are living in terms of your students. So if you would like to share any personal a student story, any success story with our audience, I think that would be beautiful. Okay, so thank you very much, Ikra, for asking this particular question. Recently, I got a chance to meet one of my student, and what she said कि sir, I'm already doing job here, and I'm making good money. मेरे ख्याल में 6 figures की job वो कर रही थी यहाँ पे, and she said I got the job in Germany. ठीक है, that's a remote job, and they're paying me 600 euro. So and she said to me कि sir वो लोग कह रहे हैं कि आपका कैमरा जो है all the time on होना चाहिए. ओके, सो शी सेड कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको यही कहा कि दिस इज़ गोना बी लाइक द ओनली इन दी स्टार्ट, दे गोना से दैट, और इवेंचुअली वंस दे गोना हैव द कॉन्फिडेंस इन यू, तो वो आपका कैमरा वगैरह सब बंद हो जाएगा। आफ्टर 2 or 3 months बाद मुझे कॉल आई कि सर वो कैमरा वगैरह तो सब कुछ बंद हो गया है, व्हाट दे आर सेइंग कि अब तुम्हारे जैसी मुझे 4-5 और लड़कियां दो। Just That imagine. is so nice. That is so nice. Just imagine. So the story is not yet completed. तो what she said कि सर ये तो अच्छा हो गया है, और अब मैंने उनको क्या कहा है कि मैं खुद हायर करूंगी और मैं खुद पे करूंगी, बट यू हैव टू पे मी सो दैट आई एम गोना बी एलिजिबल फॉर दी डिजिटल नोमैड वीज़ा। तो चेक दिस कि ये देखा जाए तो ये हमारा यूथ है, ये हमारे बच्चों का माइंडसेट है। ठीक है, सो अब देखें ये जो हम उसको जो काम मिला है
वो देखा जाए तो उसको क्यों मिला है, इस वजह से मिला है कि अगर वही रिसोर्स अगर वो वहाँ पे हायर करते जर्मनी के अंदर तो दैट्स गोना कॉस्ट अराउंड 2-3,000 यूरो, 4,000 यूरो पर मंथ, राइट। वो $600 600 यूरो में वो काम उनको यहाँ मिल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में 5 रिसोर्सेज हायर कर लेंगे इस चक्कर में, राइट। सो ये दिस इज़ गोना बी द विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो एज आई सेड दैट कि डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट 5 years बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी नहीं होंगी, बट दिस इज़ द टाइम वेयर एवरीवन शुड बेसिकली थिंक अबाउट इट टू टेक दी full advantage. Absolutely, absolutely. Thank you so much for this. Okay, now we're moving on to our next segment, which is a very surprising segment for you as well, Dr. Batada. So, which is like rapid fire with Dr. Batada. And you just have like 5 seconds to answer per question, and that should be very, very quick. Are you ready? Okay, so that's a surprise that you wanted to give, right? Yes, absolutely. Okay, so what is the biggest technology trend that Pakistan should embrace? Artificial intelligence. And artificial intelligence in every sector. And if you're going to basically ask me the specific sector, I'm going to say education, agriculture, specifically these two. Right. Second, biggest barrier to digital Pakistan? Digital infrastructure. That's the biggest barrier. Right. What is the digital hero of Pakistan? Digital hero, only one? Yes. Well, we do have lots of hero. In fact, I used to say that कि हर स्ट्रीम के अंदर हमारे पास हीरो मौजूद है. If you're gonna talk about the startup, तो हमारे पास स्टार्टअप पे आपको मिलेगा. अगर आप पॉलिसी मेकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा. But overall, if you are saying that, so I'm gonna go with Jahan Ara. She is basically one of the Pakistan hero for digital. Yeah. Right. One country that you would visit and you would pursue for digital nomad visa. That's a good one. Okay, so in other way I can say that कि जो मैं कंट्री का नाम ले रहा हूँ उसका डिजिटल नोमैड वीज़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड इट्स इन यूरोप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्टुगल. Right. Okay. And one thing you would like to change overnight? Well, I wanted to provide internet connection to everyone. That's also very true because of course, हमारा पाकिस्तान में rural sector is like the very untouched and untapped market. So I think that's a super great thing that you have tapped on, which is great. So thank you so much for this segment as well. Now I would like you to to conclude our podcast series and our first episode of the podcast series. So thank you so much. It was great. Right, we touched upon digital Pakistan ka vision, our major topic that was digital nomad visa as well. Also, what the opportunities are. However, I would like to ask that if our audience that if you have any questions regarding digital nomad visa या जो डॉक्टर बटाडा ने इनके रिलेटेड जो भी कोई कंसर्न्स है आपको हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा के एप्लीकेशन के अंदर if there are any ifs and buts, we are happy to answer all those questions, and for that you have to focus and add all your concerns in our comment section, and we'll be addressing those in our next episode for sure. So thank you so much for this interesting segment, Dr. Batada. It was great. So I think it was great. It's like a huge learning from you, like every episode that we're going to have under your supervision, under your vision. Here I would like to conclude that आज का episode of Digital Nomads, Digital Pakistan, that we touched upon different opportunities, what youth really should be focusing on. I think we've touched upon really, really good stuff. However, if there are any questions that our audience has, all you have to do is go on our comment section, add your comments, add your questions, and we'll make sure that in our next episode we're going to address all those questions as well, so that every query is also answered, and also it will also be an opportunity for other people as well to learn from your query as well. So thank you so much. So this was your host Ikra Asif, and with me was Dr. Imran Batada, and thank you so much for the episode. Let's stay tuned and let's meet on our next episode. Thank you so much.